So today we will be discussing on research tools, different types of research tools. In the previous class, we were discussing about characteristics of research tools. What should be the ideal research tool? We have talked about reliability, validity, different types of reliability, validity of research tools. ये सब हम लोगों ने बात किया. आज हम लोग देखेंगे कुछ research tools. There are various research tools, but we will discuss the मोस्ट कॉमन रिसर्च टूल्स जो रिसर्च में हम लोग यूज करते हैं उसको हम लोग आज देखेंगे. इनफैक्ट इफ एज ए रिसर्चर वी शुड बी एबल टू what you can say prepare different research tools, and you should be able to understand that in which condition the best which is the best tool that we have to use. So the first research tool which is the most common one is a questionnaire, Prasnavali, and any research study, basically a descriptive research study, survey study, basically, और एक qualitative study. अगर qualitative research आप एक कर रहे हैं या एक survey कर रहे हैं, the most common tool which we will be using is the questionnaires. So questionnaire is a structured research tool commonly used in surveys to collect data from individuals. It consists of set of questions designed to gather information about a specific topic. So it is a collection of questions. Now, before going further, कुछ basic concept मैं बताने की कोशिश करूंगा. We are discussing about tools, but tools, and there is other one particular term that is called as techniques. तकनीक एवं उपकरण. So they are closely linked. दोनों साथ में काम करते हैं. और एक रिसर्च में अगर हम लोग बात करें तो technique can be the whole process, and tool is the that particular device which is in your hand. That paper, it may be a test booklet or what you can say answer script जो आपके हाथ में है, जिसको लेके आप अपने डेटा को रिकॉर्ड करते हैं, या रिस्पोंडेंट जिसमें अपने responses को fill up करते हैं. That is that particular tool, but overall process that you are following is that technique. In the next class, that is on 21st means tomorrow only, we will be discussing about the techniques, different techniques of data collection. So there we will see that how they are closely linked. In this particular series of lectures, tomorrow's class will be the last class, and we have planned for a break for a few days. Then we again we can start. So questionnaire is questionnaire can be a technique also, if you are able to follow the processes. अगर आप processes सब सही से follow कर रहे हैं, but most common techniques are that we will be discussing in the next class. टूल, यहाँ पे हम लोग टूल के बारे में बात करेंगे. और जैसे ये क्वेश्चनियर तो एक है टूल के बारे में. जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, जैसे ऑब्जर्वेशन इज अ टेक्निक, but in that particular technique you are using a tool that is called as observation schedule. अवलोकन अनुसूची, अवलोकन अनुसूची जो है वो वहां पे एक उपकरण हो जाएगा, और अवलोकन जो है एक पर्टिकुलर तकनीक है, रिसर्च तकनीक है, एक शोध तकनीक है जिसका प्रयोग करके हम शोध करते हैं. So it is a broad term. Technique is the broad term, but that particular tool is. But in a particular technique, there may be several tools also. ऐसा नहीं है कि ऑब्जर्वेशन शेड्यूल है तो उसमें ऑब्जर्वेशन टेक्निक है तो उसमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल यूज होगा. यू मे यूज एन इंटरव्यू आल्सो देयर, इंटरव्यू शेड्यूल आल्सो देयर. So this type of things are there. So questionnaire जो पहला हम डिस्कस कर रहे हैं, it is set of questions are there, a set of questions that you give to the particular respondents so that they can fill up that particular
their particular responses. Now there are different types of questionnaires are there that can be um, you can just see. This is one sample image of a questionnaire. There are certain questions which has been asked. So you just see that it is asked. It can be closed-ended questionnaire also. This is a closed-ended with we can say two choices, yes and no. But it can be open-ended also. आप एक particular 2 लाइन में 4 लाइन में भी ये response ले सकते हैं. अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि आपके suppose you are asking the teacher of English that what are the problems that you are facing while teaching English in your classes. So they can respond in a particular 2-3 lines or in a paragraph also. एक paragraph में भी लिख के दे सकते हैं. And it can be a totally whenever you are conducting a research, हम लोग उसमें subjectiveness को थोड़ा रोकने की कोशिश करते हैं. And for the practicability for the analysis is what we are doing that questionnaire में भी हम लोग कुछ ऑप्शंस क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हमारे लिए आगे एनालिसिस करने में आसान हो जाए. जैसे यहाँ पे सपोज दैट क्वेश्चन ओनली कि आप क्या किस तरह की समस्याओं को फेस कर रहे हैं आप अपनी इंग्लिश टीचिंग में. इट कैन बी ए पैराग्राफ आंसर फ्रॉम द स्टूडेंट फ्रॉम द टीचर्स बट यू कैन ऑलवेज मेंशन इट. आप अलग से कॉलम बना के भी पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क फर्स्ट क्वेश्चन एज indiscipline ka problem and then you can give option yes no. The second question is infrastructural problem, then you can ask yes no. Then you can third question is you can say that interest of the children, that is one problem. Then mode of communication. So you can also give a list of items, list of responses from your side so that it can be easily chosen by the teachers. The teachers can opt that particular option, and when you are going for analysis, the analysis will become easier. So it can, what I was saying that whenever you are preparing questionnaire, best thing is that you just try to give this type of choices so that it will be easier. It will be specific also. Sometimes the respondents are not sure about what they are going to write. उन्हें क्या लिखना है, बहुत कभी कोई लिख देगा हाँ बहुत सारी समस्याएं हैं and they will leave it and you just keep on understanding क्या समस्याएं हैं. They will be not specific. So better to give them options. तो एक अच्छा क्वेश्चनियर में आप क्वेश्चन तो पूछते हैं, साथ में आप डिफरेंट ऑप्शंस या सम choices you may provide a checklist also, and from there they can make their selection, or you can provide a rating scale also. How effective is your teaching? In a questionnaire you can ask one of the question. So एक क्वेश्चनियर में आप शॉर्ट आंसर पूछ सकते हैं. यू कैन आस्क देयर check, you can put a checklist also, you can put a rating scale also. So just try to understand कि ये अलग अलग तरह से आप उसमें तो ये डाल सकते हैं और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक रिसर्च में होलिस्टिक व्यू पॉइंट्स को कलेक्ट करने में हेल्प करता है. it give you flexibility, and in the last you can put 1-2 open ended questions. आप एक दो open ended question भी पूछ दीजिए. So overall questionnaire जो है एक अच्छा device है for data collection whenever you are doing a descriptive survey or a qualitative research. Then you can go for this one. Then second one as I was saying, observation. In fact in observation the basic tool is, in fact ऑब्जर्वेशन को हम लोग टेक्निक के अंदर हम और अगली बात ये समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जिस पर्सपेक्टिव से ऑब्जर्वेशन को बताया जा रहा है, इट इज अबाउट द मेंशन ऑफ ऑब्जर्वेशन शेड्यूल्स. सो ऑब्जर्वेशन जैसा कि नाम से ही है, let me just explain it once. Observation is both a research tool and a research technique commonly used in various fields such as social sciences, psychology, anthropology, and education to gather data about behavior, events, and phenomena.
As a research tool, observation involves the systematic collection and recording of data through direct visual, auditory, or other sensory means. This is very important. Many a times when we ask the students, or in our conception or preconception or misconception is there, that observation we do using the visual senses, using our eyes only. But in fact, that is not the fact. If observation you are talking about, it involves using all these sense organs. So it involves your what you can say, hearing also, the what you can say, the sensory, other senses, your uh, skin sensation also, whatever you are feeling, for the environmental factors that you are feeling. So ऑब्जर्वेशन में सारे सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, ये सिर्फ आपके विजुअल परसेप्शंस के ऊपर नहीं होता है. और ये सपोज आई विल आस्क यू दैट immediately if someone is saying that what is it, how you are feeling about this particular class, then it is not only about that you how you are what you can say viewing me, मेरा फोटो किस तरह से आप देख रहे हैं, इस पे नहीं आपका है. मेरे को जिस तरह से आप सुन रहे हैं वो भी डिपेंड करता है कि आप मेरे टीचिंग के बारे में, आप मेरे लेक्चर के बारे में क्या अनुमान लगाएंगे. So it involves all the sense organs involving, and it is a very systematic process. We are not saying about सीइंग और लुकिंग, देखना और ये एक अलग बात है, लेकिन अवलोकन जो है वो काफी ऑब्जेक्टिव, काफी स्किल्ड टास्क है. ऑब्जर्वेशन अगर आपको आता है देन इट इज एन ऑब्जेक्टिव मैटर मेथड, बट सीइंग कैन बी वेरी मच सब्जेक्टिव. बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि देखने वालों की आंखों में अलग अलग चीजें अलग तरह से दिखता है, सबको अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से दिखता है. मेरे को जो दिख रहा है वो किसी और को कुछ और दिख रहा होगा. सो दैट इज अबाउट सीइंग एंड लुकिंग एंड व्यूइंग. बट ऑब्जर्वेशन विल बी द सेम. अगर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ तो मेरा ऑब्जर्वेशन और किसी और एक पर्सन का जिसको ऑब्जर्वेशन प्रोसेस मालूम है, उसका ऑब्जर्वेशन भी मैच करेगा मेरे ऑब्जर्वेशन से, if he is knowing that particular observation skill. So this is that technique I am not talking about now. The observation schedules are there. आप observation schedule लेके जाएंगे, एक अनुसूची है अवलोकन अनुसूची, उसमें लिखा गया रहेगा. सपोज यू से दैट the infrastructure was proper in the, that observation schedules are filled up by the researcher. The researcher और field investigator जो भी आपका रिसर्च कर रहा है वो ऑब्जर्वेशन शेड्यूल बनेगा. एंड क्वेश्चनियर इज फिल्ड अप बाय द रिस्पोंडेंट्स, द सब्जेक्ट्स, द सैंपल. दिस इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस. शेड्यूल जो है वो जनरली आप एज ए रिसर्चर उसको फिलअप करते हैं. Now there are different types of observation techniques. Structured observation is there. Whenever structure observation, that means it is totally systematic, well planned in advance, that what you are going to observe, when you are going to observe, how you are going to observe, so and in which order you are going to observe. So if I'm not talking this one in detail because we have got observation technique to be discussed in the next class also. So just I am giving you a little bit idea about this observation. So structure observation is when it is very much pre-planned, very much, and you can just compare it to a lab setting. लैब सेटिंग जब साइंस के एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें सब फिक्स किया जाता है कि आपको इतने टेम्परेचर पे, इतने प्रेशर पे, इस समय, इस इतने देर के लिए ऑब्जर्वेशन लेना है, पहले इसको ऑब्जर्वेशन लेना है, फिर. So it is totally, but in behavioral science also it can be done. आप फर्स्ट पीरियड में ऑब्जर्वेशन लीजिएगा, आप इतने समय के लिए ऑब्जर्वेशन, जस्ट you must be knowing about Flanders interaction analysis component. One technique is there टीचर्स के ऑब्जर्वेशन के लिए. तो एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन है, हर आई थिंक विद इन 5 सेकेंड यू हैव टू टेक वन ऑब्जर्वेशन और 3 सेकेंड में भी. तो ये जो हम प्रियाक्स एनालिसिस जो यूज करते हैं वो एक स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन है. अनस्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में हम लोग वैसे पूरा तरह से प्लान नहीं करते हैं, ये थोड़ा सा
आगे पीछे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकता है. यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन कि नहीं हम ऑब्जर्वेशन करने के लिए गए हैं. लेट मी ऑब्जर्व फर्स्ट दिस वन, देन वी विल गो फॉर दिस ऑब्जर्वेशन. और it means how, when, which way, for how much duration. ये सारे चीजों में आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हैं. दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन. Participant observation, when the observer is part of that particular incident or phenomenon. सपोज आप स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है कि हाँ वो प्लेग्राउंड में किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं, एंड यू आल्सो आर playing with them, or you are also the part of that particular game, then participant observation. And sometimes you are making observation from from a distance. Suppose आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और वहां से आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप देख रहे हो, वहां से ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका वो एक नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन होगा. दैट इज आल्सो क्वाइट यूजफुल. दोनों का अपना अपना लिमिटेशंस है और बेनिफिट है. नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, दैट मींस you are not planning anything. You just start and just uh, what you can say, you just go to that particular natural setting and just start observing. आप कुछ वैसा प्लान नहीं करें, आप कुछ भी वैसा what you can say that there is no such any type of biasness in this one, then that is called naturalistic observation. Control observation is just opposite of naturalistic observation, and that example is labs, total lab setting. और what you are doing in an experimental research. Experimental research में आप जो कर रहे हैं वो आपका एक कंट्रोल ऑब्जर्वेशन का एग्जाम्पल है. Then third one is the rating scale. So rating scales as the rating scale is a closed-ended survey question used to represent. It is the most common type of tool which are used in just like this questionnaire. क्वेश्चनियर से भी ज्यादा मैं बोलूं, खास करके जो हमारा मास्टर्स लेवल का जो रिसर्च सब हम करते हैं उसमें क्वेश्चनियर से भी ज्यादा दिस रेटिंग स्केल्स आर यूज्ड बिकॉज दे आर इजी टू व्हाट यू कैन से, जो डेटा जो कलेक्ट करके हम लाते हैं उसको आसानी से हम उसको एनालाइज कर पाते हैं, बिकॉज इट इज उसका क्वांटिफिकेशन हम कर देते हैं आसानी से. क्वेश्चनियर में क्वांटिफिकेशन करने में थोड़ा दिक्कत आता है बिकॉज इट हैज गॉट डिफरेंट फ्लेक्सिबिलिटी. मैंने बोला कि उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन भी डाल देंगे, उसमें चेकलिस्ट डाल देंगे, उसमें रेटिंग स्केल डाल देंगे, उसमें एक ऑर्डिनल स्केल डाल देंगे. तो ये डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी होने के कारण क्वेश्चनियर में आपका स्कोरिंग करना और फिर उसका एनालिसिस करना, बिकॉज इट मे बिकम डिफिकल्ट. ऑल्दो इट इज वेरी गुड वन, ये एक अच्छा टूल है, बट रेटिंग स्केल इज इजियर वन टू स्कोर एंड एनालाइज. जनरली जो हमारा रेटिंग स्केल जो हम यूज करते हैं हमारे रिसर्च में, दैट इज द लिकर्ट टाइप रेटिंग स्केल, जिसमें 5 पॉइंट और 7 पॉइंट का रेटिंग स्केल होता है. देयर आर 5 ऑप्शंस अवेलेबल, देयर स्ट्रांगली एग्री टू स्ट्रांगली डिसएग्री. और फिर उसमें हमारे पास, क्योंकि जब हम उसमें ऑप्ट कर देते हैं रिस्पोंडेंट्स, तो हम इजीली उसको स्कोर कर सकते हैं. So rating scale is a closed-ended survey question used to represent respondent feedback in a comparative form for specific particular features, products, services. It is one of the most established questions types for online and offline surveys, where survey respondents are expected to rate the. ये थोड़ा आपका कमर्शियल फील्ड से, कमर्शियल फील्ड में भी अगर जाएंगे, बिजनेस फील्ड में भी जाएंगे, तो रेटिंग स्केल आर देयर. सपोज यू आर staying at a hotel or a restaurant, food quality, तो आप उसको अगर किसी से पूछते हैं कि कैसा आपको खाना कैसा लगा, और then you can ask the उसमें अलग अलग ऑप्शंस हो सकते हैं, क्वेश्चन हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज quality of food, second option can be the service, third options may be that cost of that particular foods. So and then you have to rate, आप उसमें rate करेंगे कि नहीं, it is excellent or it is average or it is poor.
सो इस तरह के एक्सपीरियंसेस हम करते हैं. और इफ यू आर गोइंग फॉर ए this online marketing also in Amazon you go, in Flipkart you go, then there also customers reviews are there. That is also one type of rating scale. You give the rates of 1, 2, 3. Generally it is up to 5, or then you just try to and how much it useful it is. Whenever you are selecting a product, you are just going through those reviews, that ratings. So ये use होता है. तो इसी तरह के rating scales are useful when you are कलेक्टिंग डेटा. हमारे सर्वेज में जब हम लोग एक student teachers attitude towards use of ICT, there you prepare one rating scale. Students interest for the mathematics subjects, there also you can use rating scale. So this attitude scale, interest scale, generally many of the uh, tests in psychology, educational psychology, are prepared using this particular rating scale method. So it is quite useful, और इसको हम यूज करके करते हैं. Now there are researchers use a rating scale in research when they intend to associate a qualitative observation measure with the various aspects of product of. तो जनरली हमारे पास क्वालिटेटिव टर्म्स तो है, जैसे मैंने बोला फूड कैसा लगा, खाना कैसा लगा आपको, आपका सर्विस कैसा लगा आपको, और कॉस्ट कैसा था. सो दी रिस्पॉन्स कैन बी बहुत अच्छा एंड बहुत खराब. ये सब क्वालिटेटिव आउटकम है, लेकिन हम इसको आसानी से नंबर्स में बदल देते हैं. स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, एवरेज, और इस तरह से जब हम करते हैं, इसको हम आराम से एक स्केल में बदल सकते हैं, एक नंबर में बदल देते हैं, और उस नंबर से हम आराम से, because you just try to see Amazon may be rating 4.5, 3.5, 5. So like this the ratings you will get. So it is actually qualitative. No one is going to, हम लोग इतना ज्यादा हैबिचुअल हो गए हैं. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि 5 नंबर का मतलब क्या होता है. 5 नंबर तो बहुत कम है, या 3 नंबर बहुत कम है. But actually this 3 number and 4 number is not important. We know that 5 means excellent. How it is a qualitative term actually. अदरवाइज इन मैथमेटिक्स 5 का मतलब तो एक बहुत कम छोटा नंबर है. समन से क्या 100 तो ज्यादा बड़ा है. बट यू हैव जस्ट मेड इट जस्ट लाइक दैट कि नहीं, 5 जो है वो सिग्निफाई करेगा आपका एक्सेलेंसी का, 1 जो है वो सिग्निफाई करेगा दैट क्वालिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज वेरी पुअर. सो क्वालिटेटिव जो भी टर्म्स है, इसमें आसानी से हम उसको एक नंबर्स और स्केल में बदल देते हैं, और इसके बाद हम उसको यूज करते हैं. A rating scale survey question can be compared to checkbox question, but a rating scale provides more information than merely yes no. Yes no वाला भी हम लोग देख रहे थे. चेकलिस्ट जो है, चेकलिस्ट से ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम कंपैरेटिव पोजीशन देख सकते हैं. बहुत बार हम यस नो की सिचुएशन में नहीं रहते हैं, बीच के सिचुएशन में रहते हैं. So rating scale gives you a chance to represent your feeling on the exact particular point. इसीलिए हमने बताया कि ये भी एक खासियत है, एडवांटेज है रेटिंग स्केल का, दैट द रिस्पोंडेंट कैन शेयर इट, दैट कि हम किस पोजीशन पे हैं. आई एम नॉट एट द maybe the strongly agree position, but I am at the agree position. Or it can take, that scale can be what you can say, the skills को और भी बड़ा हम डायमेंशन में, और भी बड़ा, और भी डिवीजन उसमें लेके आ सकते हैं. इट कैन बी ए 7 point scale, it can be a 9 point scale. So in this way, now again if you are making it so much divisible, then again it is difficult for the respondent to define that particular point हम कहाँ हैं. So हम लोग basically 5 से 7 point scale बनाते हैं. So the most common one in this one is a Likert scale. A Likert scale is one of the most widely used rating scale. Respondents are presented with a statement or question, and they indicate their level of agreement or disagreement on that scale, typically ranging from strongly disagree to strongly agree. तो ये Likert scale काफी ज्यादा यूज होता है, और इसमें
टिपिकली आप 5 पॉइंट्स का बनाते हैं. द फर्स्ट चॉइस maybe strongly agree, then agree, then what you can say average या moderate या no response या जो भी है average. And then the third fourth level is disagree, and the fifth level is strongly disagree. So in between that the respondent can make a choice, make choice बना सकते हैं. So ये हम लोग एक्सपीरियंस किए होंगे. कोई भी ज्यादातर रिसर्च जो हमारे हो रहे हैं वहाँ पे जनरली एजुकेशन में जो भी रिसर्च होते हैं उसमें रेटिंग लिकट टाइप स्केल का काफी यूज है. Although I am saying that questionnaire is the better option, but it takes time to analyze. But ये आप holistic feedback अगर लेना चाहते हैं तो it is the better option. But still you have to conduct our research in a particular set time duration. So हमें रेटिंग स्केल या ऐसे ऑप्शन जिसमें कि हम आसानी से स्कोर कर लें और इंटरप्रेट कर लें, इसलिए हम लिकट टाइप स्केल्स को यूज करते हैं. There may be other types also. The other types are numerical rating scale. So as I told you, ठीक है, strongly agree, strongly disagree तो ये qualitative terms यहाँ दिखते हैं. या you can say that there other options are there. The master, the 5 points can be master, learner, then beginner, and like this options. Qualitative options are there, but it can be numerical rating scale also. Totally जैसे Amazon का है 1 से लेके 5 में आप दीजिए, and all of us know कि 5 का मतलब हाईएस्ट है और 1 का मतलब लोएस्ट है. उसी तरह से हम बहुत जगह में हम लोग देखते होंगे, बहुत सारे रियलिटी शो में देख रहे हैं 10 पॉइंट स्केल दिया गया है, गिव सम सर्टेन मार्क्स इन बिटवीन 1 to 10. तो जहाँ पे हमें नंबर्स अवेलेबल हैं, सो इसका पॉजिटिवनेस ये बता सकते हैं कि जैसे हमारे पास 5 पॉइंट जो ये है क्वालिटेटिव रेटिंग स्केल जो लिकट टाइप में देखे थे, स्ट्रांगली एग्री से स्ट्रांगली डिसएग्री, देयर आर परफेक्ट पॉइंट्स देयर. 5 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं. लेकिन न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल अगर बहुत ज्यादा डिविजिबल करके आपने रखा है तो आप, जैसे मैंने बताया कि आप 1 से लेके 10 के बीच में कितना देना चाहते हैं. 1 पर्सन कैन गिव 9.2, 9.3, 9.4, 9.5. So the options are more here. ज्यादा अलग सटीक ऑप्शन आप चॉइस कर सकते हैं. Of course, it can be used for analysis also because आपको 9.2 मिले, 9.4 numbers मिल रहा है, आप आराम से उसको यूज कर लीजिए. Then there are graphical, visual or pictorial rating scale. So many a times graphical का मतलब है कभी-कभी हमें एक पर्टिकुलर ग्राफिकल वे में जैसे स्टार सेलेक्ट करना पड़ता है, स्माइली सेलेक्ट करना पड़ता है. तो इस तरह के रेटिंग स्केल जहाँ पे हम किसी ग्राफिकल मोड से या किसी स्माइली, जैसे मैंने बताया, स्टार बताया, इट कैन बी नंबर ऑफ व्हाट यू कैन थम्स अप, लाइक्स, ये इस तरह का जब अगर बात आता है तो दिस इज आल्सो वन टाइप ऑफ रेटिंग स्केल. Then there one is just like Likert scale. Maybe the Likert scale is easier, but there is one other rating scale that is called Gutman scale. Gutman type scale. Gutman एक साइकोलॉजिस्ट का नाम है, इस तरह से Likert भी एक व्यक्ति का नाम है. गटमैन स्केल भी गटमैन एक व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट थे जिनके नाम से है. और ये एक ऐसा स्केल है जिसको बनाने में थोड़ा समय लगता है इन कंपैरिजन टू द लिकट टाइप. इसमें हम लोग जनरली ऐसा करते हैं कि वी हैव टू गो थ्रू ए रिगरस प्रोसेस. आपको बहुत सारे एक्सपर्ट्स के साथ मिलके इसको बनाना होता है. फर्स्ट जैसे रेटिंग स्केल हम लोग जनरली कैसे बनाते हैं, जो हमारा लिकट टाइप स्केल है, वी जस्ट राइट द क्वेश्चंस. सारे क्वेश्चंस हमने लिख दिया. सपोज यू मेड 50 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन, और उसके बाद एक्सपर्ट्स को दिखा दिए, एक्सपर्ट्स का फीडबैक ले लिए. एंड जनरली दे गो फॉर फेस वैलिडिटी. ज्यादा से ज्यादा आप आगे जाके आइटम टोटल कोरिलेशन कर लें. एंड आइटम टोटल कोरिलेशन बिकॉज यू कैन नॉट गो फॉर डिफिकल्टी एनालिसिस एंड डिस्क्रिमिनेटिंग पावर एनालिसिस, ये सब तो इसमें नहीं किया जा सकता है क्योंकि रेटिंग स्केल है, इट इज नॉट एन अचीवमेंट टेस्ट. तो आपने फेस वैलिडिटी करा लिया, एक्सपर्ट्स ओपिनियन ले लिया, और उसके बाद वो और आइटम टोटल कोरिलेशन करा लिया.
तो उससे रेटिंग स्केल का काम चल जाएगा, लिकट टाइप रेटिंग स्केल का काम चलेगा। लेकिन गटमैन स्केल में इट इन्वॉल्व सेवरल प्रोसेसेस, you have to involve several experts. Suppose you involve 10 experts, 10 experts, जैसे अगर मैं बोलूं, जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये बोलता हूँ कि सपोज आई एम ट्राइंग टू जस्ट आई एम गिविंग यू सर्टेन एग्जांपल ऑफ दिस पर्टिकुलर गटमैन स्किल। सपोज मैं ये देखना चाहता हूँ कि बच्चों का मैथ्स में कैसा इंटरेस्ट है, मैथ्स के प्रति कैसा इंटरेस्ट है, ये हमें देखना है। Now typical Likert skills are there. Likert scale में है, जैसे उसमें ऑप्शन देगा कि I like to attend mathematics classes. I like to go for mathematics Olympiad. I like to talk to my teacher, mathematics teacher. ये I strongly agree, strongly disagree करके हमने Likert टाइप में एक डेटा कलेक्ट कर लिया। लेकिन गटमैन स्केल में यही सारे क्वेश्चंस वो एक्सपर्ट्स के पास रखा जाएगा एंड द एक्सपर्ट्स विल मेक चॉइसेस। एक्सपर्ट जो है उसको रेटिंग देंगे। जैसे मैंने 4 क्वेश्चन बताया कि मैं मैथमेटिक्स क्लास करने के लिए हमेशा जाता हूँ, मैं मैथमेटिक्स ओलंपियाड में जाना चाहता हूँ, मैं मैथमेटिक्स टीचर से बात करना चाहता हूँ, मैं हमेशा जब भी मेरे पास लीजर टाइम होता है मैं मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। मैं मैथमेटिक्स जो हमारा हिस्टोरिकल पास्ट है या हमारे जो मैथमेटिशियन हैं उनकी जीवनी को पढ़ता हूँ। तो ये जो मैंने 5 स्टेटमेंट बताया, ये 5 स्टेटमेंट का रेटिंग आपको एक्सपर्ट्स के द्वारा कराना होगा। एक्सपर्ट्स बताएंगे कि नहीं, इसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑप्शन है कि ये व्यक्ति जब भी लीजर टाइम में टाइम मिलता है ये मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो दिस इज वन स्टेटमेंट कि अगर ये कोई चॉइस कर देता है, just try to understand, I'm not explaining it in the using this what you can say black and board and writing on the these slides, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके पास सपोज ये 5 क्वेश्चन आइटम मैंने बताया कि मैं मैथमेटिक्स क्लासेस जाना पसंद करता हूँ, मैथमेटिक्स टीचर से बात करना पसंद करता हूँ, लीजर टाइम में मैथमेटिक्स जब भी हमको मौका मिलता है मैं मैथमेटिक्स सॉल्व करता हूँ, मैथमेटिशियन की जीवनी पढ़ता हूँ। तो ये 5 स्टेटमेंट में अगर मैं एक एक्सपर्ट हूँ, मैं बोलूंगा कि नहीं, इसमें जो ये ऑप्शन है कि मैथमेटिक्स में लीजर टाइम में मैथमेटिक्स में अगर प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूड स्टेटमेंट। अगर इस स्टेटमेंट में बच्चा टिक मार देता है, इसका इसका मतलब है कि ही विल एग्री विथ ऑल अदर स्टेटमेंट, इतना ज्यादा वैल्यूएबल। सो ही विल रेट दिस पर्टिकुलर एज एन एक्सपर्ट। मैं रेटिंग करूंगा ये 5 स्टेटमेंट का, और सबसे हाईएस्ट लेवल वाला जो रेटिंग है उसको सबसे ऊपर रखा जाएगा। देन नेक्स्ट इस तरह से, मतलब ये 5 में से सबसे लिस्ट वैल्यूड वाला हो सकता है कि नहीं। मैं मैथमेटिक्स का सपोज एक ऐसा क्वेश्चन है कि सपोज इन्हीं में से सबसे ऐसा, मैं मैथमेटिक्स टीचर से हमेशा बात करता हूँ, सपोज दिस वन इज द लिस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। ये ऐसा स्टेटमेंट नहीं है जिससे आपका मैथमेटिक्स का इंटरेस्ट पता चले। एज एन एक्सपर्ट आई फील, मेरे को लगता है, और इसी तरह से हर एक एक्सपर्ट से ये रेटिंग करवाया जाएगा एंड अकॉर्डिंगली ये रेटिंग कराने के बाद सपोज 10 लोगों से रेटिंग करा लिया गया। अब हर एक क्वेश्चन का, जैसे मैंने तो प्रायोरिटी दे दी कि लीजर टाइम में मैथमेटिक्स सॉल्व करता हूँ, ये सबसे टॉप में जाना चाहिए। किसी एक्सपर्ट ने उसको 2 नंबर पे रखा, किसी एक्सपर्ट ने फिर 1 नंबर पे रखा, किसी ने उसको 4 नंबर पे रखा। तो उस पर्टिकुलर आइटम का एक एवरेज रेटिंग निकाला जाएगा एंड मे बी दैट रेटिंग एडिशन सम इज 1.5 निकल के आया, एवरेज उसका रेटिंग 1.5 निकला। उसी तरह से दूसरे का रेटिंग। अब ये क्वेश्चन जब है ना, ये इस तरह से तैयार होगा और तब स्कूल सब्जेक्ट्स के पास जाएगा। तो अब कोई अगर टिक लगाता है तो द मार्क्स जो मैं पहले बता रहा था कि नहीं इसका स्ट्रांगली एग्री स्ट्रांगली डिसएग्री इक्विवेलेंट है सबके लिए, सब क्वेश्चन के लिए वो लिकर्ट स्केल में एक जैसा रहता है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट वैल्यूड स्टेटमेंट इज देयर एंड द लीस्ट वैल्यूड स्टेटमेंट इज देयर। तो जैसे ही बच्चा टिक लगाता है अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर उस क्वेश्चन में क्या मार्क्स है, उसके हिसाब से उसका स्कोर जो है वो हाई आ सकता है।
अलग आता है, हर एक क्वेश्चन का प्रायोरिटी सेम नहीं है, मार्क्स सेम नहीं है, और इस तरह से तो व्हाट आई मीन टू से इस रिक्रूटमेंट स्केल जो है वो इट इज टाइम टेकिंग टू डेवलप। हाँ बना हुआ है, देन यू कैन इजीली यूज, आराम से आप यूज कर लीजिएगा। लेकिन अगर ये बना हुआ नहीं है, सो टू प्रिपेयर इट, टू डिजाइन इट, टू एनालाइज, ये करना थोड़ा सा मेहनत लगता है। तो गटमैन स्केल इज आल्सो वन टाइप ऑफ लिकर्ट स्केल, और उसके which is one type of rating scale, not Likert scale. Likert scale is one type of rating scale, and the numerical rating scales are there, graphical rating scales are there, Gutman scale is there. So these are some rating scales. चेकलिस्ट ये काफी आसान है। चेकलिस्ट आप जान रहे हैं कि यू विल बी गिवन सेट ऑफ रिस्पॉन्सेस और बिहेवियर आउटकम्स, और उसमें से आपको टिक लगाना है। चेकलिस्ट को भी एक आप टूल के रूप में मान सकते हैं, मोस्ट इजीएस्ट वन। लेकिन इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम क्वेश्चनियर के अंदर, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इंटरव्यू के अंदर। तो चेकलिस्ट इस तरह से काम करता है। नेक्स्ट वन इज इंटरव्यू शेड्यूल्स। सो इंटरव्यू शेड्यूल्स वन ऑफ द most valid and reliable one if you are skilled enough to use this particular tool. Technique of course is there, but if you have got prepare an interview schedule, then your interview will have more reliability and validity. So interview schedule जो है are tools for conducting an interview technique in research. The schedule consists of questions and direction. It has become direction for administration and recording, which varies or depend on which type of interview we are going to conduct. It can be structured interview or a totally unstructured interview. इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है, जनरली हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चंस के बारे में डायरेक्शंस होता है। जनरली किसी भी टूल में अगर आप उसको लेके आते हैं तो उसमें पर्टिकुलर टूल होगा और उसको एडमिनिस्टर करने का तरीका सब होगा। तो उसी तरह से इंटरव्यू शेड्यूल में भी क्वेश्चंस होता है और उसके साथ ये शेड्यूल होता है, डायरेक्शन होता है। बट इफ इट इज ए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जहाँ पे सारे चीज प्लान करके आप कर रहे हैं, आपको मालूम है कि किस ऑर्डर में क्वेश्चन पूछना है ना, और क्वेश्चन के अंदर क्या सब क्वेश्चंस है क्या, तो आप सीरीज ऑफ क्वेश्चन एक के बाद एक पूछते हैं। तो उस समय स्ट्रक्चर और वहाँ लिखा भी रहेगा आपके इंटरव्यू शेड्यूल में, यू हैव टू आस्क, यू हैव टू फॉलो दिस ऑर्डर, दिस मच टाइम यू हैव टू गिव फॉर ईच क्वेश्चन। तो स्ट्रक्चर, जैसे कि स्ट्रक्चर ऑब्जर्वेशन में सारा कुछ प्लान रहता है, उसी तरह से इंटरव्यू शेड्यूल में, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल में the order is planned, the duration of taking the response is also planned. इस तरह से आप रिकॉर्ड करोगे रिस्पॉन्स, वो भी प्लान्ड है। either you are going to write the transcript, आप ट्रांसक्रिप्ट लिखोगे खुद से, या ऑडियो रिकॉर्ड करोगे, या you will go for video recording also. So ये स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर में, because it is unstructured, the questions order can vary. क्वेश्चन आपने डाल दिया है, आप सिचुएशन को देख रहे हैं, आप सिचुएशन के हिसाब से जब जैसा क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं अभी ये पूछना चाहिए, देन यू कैन आस्क। जैसे ज्यादातर हम लोग जब ये न्यूज चैनल में देखते हैं, जब कोई रिपोर्टर जब किसी आम आदमी से क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। he has not planned anything that after this he will, but when he is taking interview from an important person like prime minister of the country or home minister of the country or chief minister of the state, ये जब आप करते हैं तो ये टोटली स्ट्रक्चर्ड होता है। यू कैन नॉट आस्क एनी क्वेश्चन इन एनी ऑर्डर एंड फॉर गोइंग इन डेप्थ एनालिसिस, ये आप नहीं करते हैं, जनरली नहीं करते हैं। ये स्ट्रक्चर होता है और सब लोग जानते हैं इट इज स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। सो द क्वेश्चंस ऑर्डर एंड दिस एवरीथिंग इज प्री प्लान। लेकिन जब हमारे पास सिचुएशन ऐसा होता है, जब तो हम रिसर्च में भी ज्यादातर स्ट्रक्चर इंटरव्यू शेड्यूल फॉलो करते हैं, देयर ऑर्डर इज देयर। बट इफ यू आर कंडक्टिंग अ रिसर्च विथ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जब आप पूछते हैं तो फिर क्वेश्चन आपके माइंड में आता है कि नहीं हमको ये क्वेश्चन भी पूछ लेना चाहिए, इन डेप्थ एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू शेड्यूल्स are also important in that manner, उस समय हमें इसी का यूज करना चाहिए। so it has got other importance, unstructured interview शेड्यूल का अलग important है।
इम्पोर्टेंस है। तो हमें देखना है आपका सिचुएशन कैसा है, आपका स्टडी कैसा है, उसका डिमांड क्या है। अचीवमेंट टेस्ट, इट इज मोस्ट कॉमन वन, एवरीवन नोज दिस वन। जब भी हम किसी सब्जेक्ट का अवेयरनेस एंड स्किल लेवल को टेस्ट करना है, then you are going for achievement test. Suppose you are trying to see the effect of blended learning on achievement in science, तो blended learning तो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आप, वो अलग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट अचीवमेंट इन साइंस विच इज डिपेंडेंट वेरिएबल, अचीवमेंट इन साइंस मेजर करने के लिए आपको एक अचीवमेंट टेस्ट बनाना पड़ेगा। एंड एज स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन यू मस्ट बी नोइंग इन योर टीचर एजुकेशन, what you can say, education program only, you must have learned about how to construct achievement test. Of course, those achievement tests are teacher made test, not following all the rigorous step of achievement test construction. लेकिन जिस तरह से एक आपको आइडिया आया होगा कि जिस तरह से ब्लूप्रिंट बनाते हैं और जिस तरह से वेटेज डिसाइड करते हैं और जिस तरह से आप आगे क्वेश्चंस को सेलेक्ट करते हैं, स्कोरिंग की बनाते हैं, उससे और आगे बढ़ते हुए जब आप रिसर्च में आते हैं, जब आप मास्टर डिग्री का रिसर्च कर रहे हैं या पीएचडी डिग्री का रिसर्च कर रहे हैं, यू विल गो फॉर दिस डिफिकल्टी एनालिसिस, यू विल गो फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग पावर एनालिसिस, डिस्ट्रैक्टर एनालिसिस। ये सारे एनालिसिस करने के बाद यू कंस्ट्रक्ट ए गुड या स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट आप बनाएंगे और फिर उसको यूज करके अचीवमेंट को आप मेजर करेंगे। तो अचीवमेंट टेस्ट इज अनदर। देन नेक्स्ट वन इज इन्वेंटरीज। Inventories are generally one type of, it may be a rating scale, it may be a questionnaire also. जब आप सेल्फ रिफ्लेक्शन करके रिस्पॉन्सेस लेना चाहते हैं, whenever you are going to ask the question by yourself, I like to attend mathematics classes, I love meeting with my friends, तो ये जिस तरह से जब अपने आप को रिफ्लेक्ट करके जब आप रिस्पॉन्स करते हैं, इट मे बी अ रेटिंग स्केल, इट मे बी ए क्वेश्चनियर। लेकिन जब भी हम रिस्पॉन्सेस के मतलब फर्स्ट पर्सन में जब हम चीजों को लिखते हैं, then it becomes inventories because you are trying to explore within, आप अपने अंदर एक्सप्लोर करना, रिस्पोंडेंट्स अपने अंदर से एक्सप्लोर करके अपने भावनाओं को सामने लेके आता है। सो इस तरह का यू शुड गो फॉर मैथमेटिक्स क्लासेस, you should not cut trees, you should follow discipline, ये कहीं ना कहीं तो everyone will write yes yes yes, it has to be done. So ये आपका self reflection नहीं बता रहा है। But if I will ask that I like sharing thoughts with the mathematics teacher, I like to attend mathematics classes, so ये जब हम अब बताते हैं, it is one type of self exploration, self आप अपने आप से पूछते हैं और फिर आप रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये हमारा एक टेक्निक है या टूल है जिसको कि हम लोग रेटिंग स्केल हो जाए या क्वेश्चनियर हो जाए, उसके अंदर जब इस तरह की प्रश्न पूछा जाता है, देन इट बिकम्स एन इन्वेंटरी। नेक्स्ट वन इज टेस्ट बैटरी। मेनी टाइम्स हमने सुना होगा टर्म टेस्ट बैटरी का। टेस्ट बैटरी जैसा कि नाम से ये जैसे बैटरी में अगर देखा जाए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इन्वर्टर बैटरीज, और ऐसे भी आप कोई भी बैटरी में इट इज कलेक्शन ऑफ डिफरेंट सेल्स, बहुत सारे सेल्स उसके अंदर लगे रहते हैं। तो उसी तरह से अगर आपका एक टेस्ट, आपका एक टूल है जो कि लॉन्ग फॉर्म में है, मे बी इट हैज गॉट डिफरेंट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, देन इट बिकम्स टेस्ट बैटरी। एक सेक्शन में हो सकता है आपका एक रेटिंग स्केल हो, दूसरे सेक्शन में हो सकता है एक चेकलिस्ट हो। तो इस तरह से जब आप एक ब्रॉड एरिया, सपोज इंटेलिजेंस, सपोज पर्सनैलिटी, सपोज एप्टीट्यूड, इस तरह के सपोज टीचर एप्टीट्यूड टेस्ट, क्लरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट, ये सारे में हम लोग टेस्ट बैटरी यूज करते हैं, क्योंकि ये ऐसे एरिया नहीं है कि आपने 10 क्वेश्चन पूछ लिया और आपका रिस्पॉन्स सामने आ गया। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम अलग एक पर्टिकुलर स्टडी में 2-3 वेरिएबल पे एक साथ डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, देन यू कैन, of course this is not official term for टेस्ट बैटरी। टेस्ट बैटरी का टर्म जो है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया कि अगर आपके पास एक ब्रॉड एरिया है
और उसमें बहुत सारे डायमेंशंस हैं, and to get the holistic perspective, to get the real picture, you have to divide into different sections so that it can give you clear picture of that particular behavior or that particular outcome. So टेस्ट बैटरीज हम लोग बनाते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट बैटरी अवेलेबल है, स्कॉलिस्टिक एरिया टेस्ट, स्कॉलिस्टिक एरिया, स्कॉलिस्टिक एरिया यू कैन नॉट मिक्स ऑल द सब्जेक्ट एरिया टुगेदर और साथ में 10 क्वेश्चन पूछ दिए, हम बोले हाँ स्कॉलिस्टिक हो गया। यू हैव टू डिवाइड सेक्शंस, मैथमेटिक्स का अलग, साइंस का अलग, लिटरेचर का अलग, ऐसे करके आप अलग अलग सेक्शन बना के यू कंडक्ट स्कॉलिस्टिक टेस्ट बैटरी। I also told you aptitude test batteries are there. So test battery are combination of different tests in different sections. It is there, or major times it is in long form. So that is that. Now one other tool is focus group discussion. Of course focus group discussion is a technique, एक टेक्निक है, लेकिन उसमें टूल का पास ये है कि जब हम लोग फोकस ग्रुप डिस्कशन, ऐसे नहीं है जहाँ हमको फोकस ग्रुप डिस्कशन हम एज ए रिसर्चर मेरे को मालूम है, मैं गया और लोगों को बैठा दिया और फोकस ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर दिया। इट डज नॉट गो लाइक दैट। सो व्हाट यू डू, यू डिसाइड, यू मेक अ टूल, मेक सर्टेन स्टेटमेंट्स। आपको बताना होगा, प्रोसेस आपको पहले से लिखा होना चाहिए, सो दैट एनी रिसर्चर कैन replicate that discussion again, बाद में भी फिर से किया जा सके। So there may be initiation questions, there may be mediation questions, there may be closing question। तो ये सारे क्वेश्चन और questions for discussion, तो ये सब जब अगर लिखा हुआ है एक particular tool में, then it becomes a tool for conducting focus group discussion, FGD, initiate the discussion, to lead towards arriving a conclusion. It may also consist of direction for the moderators, investigators on conducting the FGD. Mediation strategy as well as leading and closing questions. Sometimes you go involve yourself in discussion. Many times आपने देखा होगा बहुत सारे मीटिंग्स होते हैं, लोग मीटिंग में बैठ गए हैं और 1 घंटा हो गया, 2 घंटा होगा, वो अपना बोल रहे हैं, वो अपना बोल रहे हैं, वो तीसरा अपना बोल रहे हैं, नथिंग इज कमिंग आउट। बट दिस इज नॉट आवर रिसर्च ऑब्जेक्टिव। अगर आप रिसर्च में काम कर रहे हैं तो यू हैव टू कम टू ए कंक्लूजन, यू हैव टू डिराइव समथिंग, what is the outcome. So focus group discussion have that, this tool will have all the direction, how to start that discussion, how to what will be the questions to be discussed, how to lead towards the discussion, how to have a how what are the closing questions। तो ये जब आपके पास एक बना हुआ tool available है, then it becomes a tool for conducting focus group discussion। Now there are many online tools available, बहुत सारे online tools हैं। मैं आप आजकल हम लोग बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। जस्ट एग्जांपल इज survey monkey, survey monkey is there actually, that is survey monkey। survey planet is there, कोबो कलेक्ट इज देयर, ये कोबो कलेक्ट भी फ्री है। सर्वे मंकी, सर्वे प्लेनेट में से शायद एक कोई फ्री है। गूगल फॉर्म्स ऑफ कोर्स इट इज ओपन, और ये क्या करता है, आपको इजीएस्ट पॉसिबल वे में रिमोट एरिया से आप डेटा कलेक्ट करा सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। So online tools are quite applicable, and it can be in the form of questionnaire, it can be in form of rating scale, it can be in form of checklist। अलग अलग फॉर्म में आप तैयार कर सकते हैं और डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। So online tools are also there। Then anecdotal notes जो है ये आपका इन टाइम, रियल टाइम, अगर आप कोई नोट बना रहे हैं, सपोज आप कोई रिसर्च कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट कैसा है। तो आप वहाँ फील्ड में गए, यू मे बी यूजिंग एन ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, आप वहाँ क्वेश्चनियर यूज करें, बट यू कैन नोट डाउन सर्टेन ऑब्जर्वेशन। कुछ चीजों को आप नोट डाउन भी करते रहते हैं आपके आपके अपने लैंग्वेज में। गो ऑन राइटिंग, सपोज व्हेन यू एंटर टुवर्ड्स द गेट, आप जब गेट पे जा रहे हैं तो नो वन इज देयर टू रिसीव यू, कोई गेट बंद है, कोई खोलने वाला नहीं है, आप इधर से किसी को खोज रहे हैं, उधर से किसी, सो व्हाट एवर योर एक्सपीरियंस यू कैन नोट इट डाउन।
उसके लिए आप ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में क्वेश्चन बना के नहीं रखे रहेंगे कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया. So whatever your experience is, you go on writing. So it can be a diary entry or जनरल एंट्री. ये जनरल एंट्री आपका एजुकेशनल जर्नल जो जिसमें लेटर ये आर्टिकल पब्लिश होते हैं वो नहीं है. जनरल एंट्री भी है किसी का टर्म है. जब आप चीजों को एज इट इज हैपनिंग जो वहाँ हो रहा है वो आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं while what deriving at conclusion in your research of actual. क्योंकि बहुत चीजें हम ऑब्जर्वेशन शेड्यूल में लिखे हैं हमने रिकॉर्ड, लेकिन ये रियल टाइम जो आप चीजों को आपने वहाँ देखा है अगर उसको आप लिख के रखते हैं. So whenever, because many a times research takes time, if you PhD आप कर रहे हैं it will take years. तो आप भूल जाएंगे कि उस समय क्या हुआ था and you will just go through your observation schedule में क्या है तो क्वेश्चनियर में क्या है. बट रियल टाइम में वहाँ क्या हुआ था किस तरह की बातें हुई थी, that journal entry can give you the that reflections you can get from that one. इसीलिए हम लोग बहुत बार इसका इसको एक रियलिस्टिक सेंस में ले जाते हैं. बहुत बार ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें का क्या मतलब है, ये आपने कुछ भी लिख दिया. कोई एज ए रिसर्चर आप जो लिखते हैं उसका कुछ मतलब है. यू विल नॉट राइट एनीथिंग, यू विल नॉट राइट दैट हाँ व्हेन आई वाज एंट्रिंग टुवर्ड्स दैट. यू विल नॉट राइट, इट विल मेक सर्टेन सेंस. जिस तरह से आई विल गिव यू एग्जांपल. जिस तरह से एग्जाम जब आप क्लासेस लेते हैं जब आप हायर एजुकेशन में रखते हैं या स्कूल एजुकेशन में भी है तो अगर आप पढ़ाते हैं जस्ट ट्राई टू इफ यू आर गिविंग योर लेक्चर मेनी ए टाइम्स दीदी सर मैं भी बहुत बार करता हूँ कि अ, हम लोग पढ़ाते पढ़ाते अचानक बच्चे की कॉपी उठा के देखते हैं और उस कॉपी को देखने के बाद बहुत बार पता चलता है कि बच्चे के दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है. इट कैन बी एनीथिंग, दे हैव गॉट देयर ओन लैंग्वेज. समटाइम्स दे जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक ग्राफ के थ्रू उसने शॉर्ट में लिख लिया है. जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको एक उसने तीन चार लाइनों में कुछ संक्षेप में लिखा है. किसी ने लाइन बाय लिख लिया है. सो वट एवर रियलिटी उनके माइंड में क्या चल रहा है, हाउ योर टीचिंग लर्निंग इज प्रोग्रेसिंग, ये आप उनके कॉपी को देख के पता कर लेते हैं. इसलिए इसका कुछ मतलब है तो तभी तो हम लोग जाके ये सारी चीजों को करते हैं. तो एनेक्डोटल नोट्स हैव गॉट देयर ओन यूजेस व्हेनेवर यू आर कंडक्टिंग रिसर्च. सो ये भी एक टूल के रूप में आप सोच सकते हैं. Then the most meaningful psychological test like attitude scale, aptitude scale, interest inventory, etc. have got significant. ये सारे जो हैं ये जो आपने देखा होगा बहुत सारे एटीट्यूड स्केल हैं. एटीट्यूड टुवर्ड्स साइंस, एटीट्यूड टुवर्ड्स आईसीटी, एटीट्यूड टुवर्ड्स पेरेंट्स, एटीट्यूड टुवर्ड्स होमवर्क. ये सारे एटीट्यूड जो क्या है एक साइकोलॉजिकल टर्म है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है. इसके लिए जब आप एक टूल बनाते हैं देन इट इज ए साइकोलॉजिकल टेस्ट. एप्टीट्यूड सो मेनी साइकोलॉजिकल टेस्ट्स आर अवेलेबल इन द साइकोलॉजिकल लैब. आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं या एजुकेशनल साइकोलॉजी में भी आप लैब में जब जाते हैं तो देयर आर सो मेनी एंड ये साइकोलॉजिकल टेस्ट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को एसेस करने के लिए मेजर करने के लिए किया जाता है. मे बी दे विल टेक डिफरेंट form. There may be a rating scale, there may be a questionnaire, there may be an what you can say, just like achievement and awareness test, like MCQs can be there. So इस तरह से आप साइकोलॉजिकल टेस्ट अलग अलग हो सकते हैं, क्वेश्चनियर हो सकते हैं, गटमन स्केल हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है. तो साइकोलॉजिकल टेस्ट itself is a big what is repository, big collection of tools. So many tools are available. कभी भी रिसर्च करने जाते हैं बहुत बार स्टूडेंट जब रिसर्च मास्टर्स लेवल में करने जाता है बहुत बार वो जब अपने टाइटल्स या प्रॉब्लम को साइट नहीं कर पाता. देयर आर मेनी वेज टू फाइंड आउट योर प्रॉब्लम. बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने जो माइंड में चल रहा है जो आइडिया उसको बताते हैं देन वी कैन सजेस्ट कि आप इस तरह से अपने प्रॉब्लम को ले लीजिए. बिकॉज हम बार बार बोलते हैं यू जस्ट थिंक समथिंग. आप सोचिए अपने टॉपिक के बारे में सोचिए एंड सोचना ही नहीं है आप उसको लिखिए. क्योंकि सोचने वाले में तो बहुत सारे बच्चे जो हैं बिकॉज इट इज वेरी इजी टू स्पीक. आप कुछ भी बोल दीजिए हम सर ऐसा सोच रहे हैं गर्ल्स एजुकेशन पे काम करेंगे.
हम सोच रहे हैं ना कि सर एनवायरनमेंट में बहुत प्रॉब्लम है, उस पर काम करेंगे. So it becomes vague. Then I told them that you should write something. Write whatever nonsense, sense, whatever you want, whatever is going in your mind, you just write. Always go to your teacher with certain draft. फर्स्ट ड्राफ्ट आप लेके जाइए, कुछ लिख के ले जाइए. तो वो लिखते हैं. लिखने से हमें, लिखने के लिए, क्योंकि ये इसलिए भी बोला जाता है कि लिखने के पहले कुछ तो सोचता है बच्चा. लिखना, बोलना बहुत आसान है, लिखने के समय आपको कुछ सोचना पड़ता है. Many times they write very so many mistakes may be there, but still it reflects उनके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहे हैं, किस जगह पे हैं. जब वो उसको लिखते हैं तो वहां से हम लोग फिर उसको असिस्ट करते हैं, सजेस्ट करते हैं. बिकॉज एज एन एक्सपर्ट, एज ए सर्च सुपरवाइजर, पीएचडी गाइड, आई मे राइट ए टॉपिक विद इन मिनट्स. आई कैन राइट ए टॉपिक एंड गिव टू द स्टूडेंट कि आप इस पे कर लो. लेकिन ये कोई तरीका नहीं है. उस बच्चे को तो वो तो एक नोविस रिसर्चर है, उसको तो लगेगा सर तो बता दिए, बहुत अच्छा बता दिए, बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, डू इट. लेकिन जब वो आगे उस पर काम करने जाएगा तब उसको लगेगा ये तो हमको, मेरे को तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मेरे कुछ काम का ही नहीं है. मे बी रिसर्चर के लिए, सुपरवाइजर के लिए तो वो काफी इंटरेस्टिंग रहा हो, या उसकी क्रिएटिविटी से उसने बता दिया. लेकिन एवरी टाइम इफ इट इज टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम दिस रिसर्चर, वो उससे अच्छी बात नहीं हो सकती. तो आई एवरी टाइम से दैट यू राइट समथिंग, टेल फ्रॉम योर इंटरेस्ट. हम आपकी सारी मदद करेंगे. आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं हमको इसमें करना चाहिए टॉपिक में स्टडी, तो आप इसी उसको बताइए मेरे को. आई विल गाइड यू. डोंट थिंक दैट इसमें नहीं हो सकता है. आई विल टेल इफ द पॉसिबिलिटीज आर देयर. सो दे, उस समय जब टॉपिक को बनाते हैं तो आई ऑल्सो गेट सेटिस्फाइड कि नहीं, बच्चे ने कहा अपने मन का कुछ कर रहा है वो, और उसमें किया जा सकता है. अगर एक बहुत अच्छा रिसर्चर है, बहुत माइंडसेट उसका काफी ग्रोथ माइंडसेट है, मेनी टाइम्स दे से दैट कि आई विल डू दिस वन विथ होल एंड सोल कॉन्फिडेंस कि नहीं इससे कर सकते हैं. सो यू हैव टू डेवलप दैट पोटेंशियल. तो बहुत बार ये भी तरीका है, इसलिए इस बात को बता रहा था कि बहुत बार ये भी तरीका है that you go towards this repository collection of psychological tests जो ऑनलाइन अवेलेबल है. बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन लाइब्रेरी है जहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट के पूरे मैनुअल अवेलेबल हैं. तो आप उनको भी जब देखते हैं, वहां से भी आपको आइडिया हो सकता है कि नहीं इस टॉपिक पे या इस वेरिएबल पे स्टडी किया जा सकता है. सो many times it will also guide you to select a topic. Of course it should be of your area of interest. आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का होना चाहिए, तब वो ज्यादा अच्छा रहेगा. So there are many psychological tests. And then the last one which I am discussing is about projective tools. Now, projective tools are the tools which are what you say affected और जो किससे प्रभावित है. फ्राइड साइकोलॉजी जो है, फ्राइड का जो साइकोएनालिटिक थ्योरी है, जिसमें अनकॉन्शियस माइंड का रोल ज्यादा से ज्यादा है. वो कहीं जब आप किसी रिसर्च में अगर आप उस तरह के टूल्स बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें कि आप अपनी बातों को डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली एक्सप्रेस कर पाए, मे बी इट इज फ्रॉम द बोथ साइड, रिसर्चर के साइड से भी कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं डायरेक्टली, देन यू गो फॉर द, और समटाइम्स इट फ्रॉम द aspect of the this रिस्पोंडेंट्स आल्सो. रिस्पोंडेंट्स भी जो हैं, जब ये जब उनको प्रोजेक्टिव मेथड से चीजें पूछी जाती हैं तो आप आसानी से चीजों को बता पाते हैं, शेयर कर पाते हैं. सो इस तरह के टूल्स जो है, प्रोजेक्टिव टूल्स जो है, ये भी काफी यूजफुल है व्हेन यू आर कंडक्टिंग रिसर्च और फॉर सर्टेन वेरिएबल्स. एग्जांपल मैं इसमें एक बताना चाहूंगा जिससे कि आपको ये क्लियर होगा. जैसे रिसेंटली हमारे हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर एक बच्चे ने एक टॉपिक लेके स्टडी कर रहा था, सोसाइटियल आइडिएशन. मतलब इसका मीनिंग ये है कि सुसाइड करने की प्रवृत्ति, सुसाइड करने की प्रवृत्ति कैसी है, और दूसरे वेरिएबल भी थे साथ में, लेकिन सुसाइडियल आइडिएशन जो उसका एक वेरिएबल था कि सुसाइड करने की प्रवृत्ति को हम एडोलेसेंट में देखेंगे. नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड
when that particular student, that girl student was presenting her topic, जब अपना टॉपिक वो बता रही थी, प्रेजेंट कर रही थी प्रपोजल, देन द एक्सपर्ट कमिटी ने उसको तुरंत बता दिया कि ये सुसाइड के बारे में आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि तुम्हें सुसाइड करने की इच्छा होती है, आपको लगता है कि अपने जीवन को समाप्त कर देना चाहिए, आप हमेशा सोचते हैं कि इस तरह से क्या स्ट्रेटजी। तो that was the apprehension about that particular research title कि आप कैसे पूछते सकते हैं बच्चों को, ये तो एक इथिकल इशू हो जाएगा कि आप बच्चों से पूछ रहे हैं एड्रोसिन से, या फिर आपको अपने आप को क्षति करने की कोशिश करने का मन करता है, या अपने आप को, तो ये सारे क्वेश्चन, दैट वाज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट सारे एक्सपर्ट्स यही बता रहे थे कि आप इसको तो कर नहीं पाएंगे, आप कैसे करिएगा, टूल कैसे बनाइएगा। Then, as I saw that particular student, she was very much interested, and she also got confused कि हम क्या करेंगे इस समय। वो भी अपने टॉपिक को बहुत बार, क्योंकि वो रिसर्चर है, वो उसको सोचा होगा कि नहीं ये बहुत अच्छा काम है, बट और ये रियलिटी है, फैक्ट है कि बच्चों को, एडोलेसेंट बच्चे में आप अभी देख रहे थे कोटा में बहुत सारे ऐसी घटनाएं हुई। तो ये तो एक सिग्निफिकेंट स्टडी है, होना चाहिए, देखना चाहिए कि इनको इनके अंदर सुसाइडल प्रवृत्ति है कि नहीं। then I assist then I came with this particular idea कि नहीं यार ठीक है, आप सही बात है, आप डायरेक्ट टूल तो यूज नहीं कर सकते, आप नहीं यूज करिएगा, आप इस तरह का स्टेटमेंट, एंड वी डिस्कस, तो मैंने शेयर किया कि नहीं सी कैन गो फॉर प्रोजेक्टिव टूल्स वो यूज कर सकती है, and projective tools can also give the idea that if that particular person is interested or moving towards that negative zone for so that she can or he can commit suicide। तो ये आपको समझना है कि प्रोजेक्टिव टूल कैन बिकम सो मच यूजफुल, ये यूजफुल हो सकता है। आप प्रोजेक्टिव टूल से अपने अपना रिसर्च का आपकी ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो सकती उसकी हो गई, और उसने उसको करने के लिए उसको अप्रूवल भी मिला, एंड सी इज आई थिंक सी इज नाउ गोइंग टू सबमिट हर वर्क। सो अगर आप डायरेक्ट मेथड से जाते हैं, एक निकट टाइप स्केल बना देते हैं, क्वेश्चनियर बना देते हैं और उस तरह की चीजों को पूछते हैं, तो वो नहीं कोई इथिकल कमिटी उसको अप्रूव करता, नहीं कहीं पे वो एडमिनिस्टर हो पाता। किसी स्कूल में भी जाने से बच्चों को फूल अगर कोई देना तो बोलते हैं नहीं नहीं ये सब आप मत कीजिए, या तो गलत हो जाएगा, इसको कैसे आप ये सब क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। So in that sense, I was saying that projective tool can become very much useful whenever you want to get the indirect way of data collection। जब आपको करना है तो आप प्रोजेक्टिव टूल्स को यूज कर सकते हैं। सो अगर आप हिडन जो लेटेंट एट्रीब्यूट्स हैं किसी पर्सन के, वो अगर जानना चाहते हैं तो प्रोजेक्टिव टूल कैन बी हेल्पफुल। I will discuss about this technique. This is also one technique of research. So I will be discussing on this technique also whenever जब मैं research techniques का बात करूंगा तो projective technique is there, observation technique is there. I will discuss this one. So this was all about the tools। ये कुछ tools के बारे में मैंने आपको बताया, और ये आपको आई थिंक आपको समझ में आया होगा। Okay, thank you.